Yeah, is this formula clear to all of you? Hello. सर रिकॉर्ड ऑन कर लीजिएगा। कर लिया मैंने, देखा है नहीं आपने? हो रही नहीं हो रही? थैंक यू। हो रही है सर, हो रही। फिर क्यों बोल रहे हो? Now I switch over to the exercise 6.1, 13th edition, and it is available to you on page 373. Find the volumes of the solids generated by revolving the regions bounded by the lines and the curve in the exercise 19 to 28 above the x-axis. Now, in this slot of questions, the area under that curve above the x-axis between the limits is being revolved about the x-axis. I told you, whenever such a curve is revolved about the x-axis, every point on this curve will be generating a circle and its center will be on the x-axis. Every circle will be having its center on x-axis. Now see, ये जो मैंने नीचे shaded में बनाई है, ये actual area is there which is above the x-axis. But after the evolution, you are going to have this shape, and every point on the curve is going to generate a circle. And in that way, we are getting a solid of revolution. We call this technique as the disk method. In this figure, well, y equal to x square is what? Is a parabola. So parabola which is symmetrical to the y-axis. But the limits are 0 to 2. तो आपने negative side पर नहीं आना. You have to keep yourself on the right side. When y is 0, definitely x will be 0. This equations आप देखिए, y को 0 रखिए, तो from the given equation x will also be 0, means the origin. One point is the origin. Second point, when x is 2, so you go up to 2 units on the right side because it's a plus 2. And parabola you draw. So wherever this line x equal to 2 is crossing the parabola, that is your end point where these two lines are crossing each other. So this is the area. This much is to be revolved about the x-axis. The author has given to you. तो आपने पहले सबसे पहले उसने कहा था ना फिगर बनाइए. So that we have sketched the curve. Then find the limits. We have found the limit 0 to 2. देखिए, both the limits should be in x. One limit is given to you is in y. Put this value of y equal to 0 in the given equation. Once you will be substituting y equal to 0, you are going to get x as 0. This is must to be calculated. So your limit should be both in x. So x is 0 as well x is 2. So these are your limits. As the area AX is revolved about the x-axis, so using the formula I have told you just in the previous profile, that A to B limit pi Rx whole square dx. ये टिपिकल वो कहते हैं ना, टिपिकल एक वो वॉल्यूम लिए. देखिए जो मैंने थोड़ा सा शेड किया ना, कहीं से एक पीस काट लिया आपने और ये पूरा एक सर्कुलर डिस्क होगी ये. ओके, और ये जो कर्व लाइन है ना, छोटी सी डिस्क के लिए स्ट्रेट लाइन हो जाती है और एक सर आपके पास डिस्क बनेगी, उसका रेडियस यही होगा क्योंकि अलोंग द वाई एक्सिस है, तो वाई स्क्वायर या आर एक्स कहेंगे इसको. आर एक्स है ये रेडियस. अब आप देखिए, ये एक्चुअली वाई की वैल्यू है इसका, ठीक है ना. पाई वाई स्क्वायर कहते हैं या पाई आर एक्स कहते हैं. ये वाई स्क्वायर ही एक्चुअली. वाई की वैल्यू आपके पास ये है. वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर रखी है आपने और उसका भी स्क्वायर लेना है. देखिए आर एक्स क्या है, ये वाई है एक्चुअली. कैसे पता? ये रेडियस है ना आपका, along the y axis. पाई वाई स्क्वायर कहें या पाई आर एक्स स्क्वायर कहें, इसका स्क्वायर लेना है. तो वाई स्क्वायर means x square का square again, so you will be getting x power 4. That's it. Limit is from 0 to 2. आपको पता है on the x axis.
from origin to x equal to 2 and you integrate. अब आगे तो कुछ मसला नहीं है, just integrate the function and substitute the limits. Pi is a constant, let it be a constant outside the integral sign. X power 4 will be giving you x power 5 divided by 5. You are not to add c because this is a definite integral and limits are from 0 to 2. So pi times, once you put the upper limit 32 by 5 minus the, once you will be putting this lower limit will be 0, so I have not taken 0 because 0 is meaningless to write. So net answer is 32 by 5 pi. Cubic units you may say because this is a volume, so cubic units you can write the unit, or if you do not write even then it's okay because your author of the book is not writing the units. Any question to anybody? If you want to ask that how have we? No sir, clear है. It's very simple. Integration you know very well. और ये एरिया आपने स्केच कर लिया और उसके बाद इसको रिवॉल्व कर दिया. Okay, let me do one more problem. The second problem is y equal to under root 9 minus x square, y is 0. देखिए इसकी फिगर बनाने से बहुत सी चीजें ज्यादा क्लियर होती है. ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको. इफ y is 9 minus x के स्केयर लीजिए दोनों साइड पे, ये y स्केयर विल बी इक्वल टू 9 minus x. देखिए इसका अंडर रूट स्केयर लेने के बाद खत्म हो जाएगा और y पे स्केयर आ गया. x को इधर शिफ्ट कर दें तो x स्केयर प्लस y स्केयर इक्वल टू 9. एक बड़ी स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी? सर्कल की. That circle is having radius 3 and its center is at the origin. ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए. कैलकुलस पढ़ने वाला बच्चा अगर मैं कहूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 तो आप क्या कहेंगे? It's a circle with the radius 2 and its center is at the origin. अगर मैं कहूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 आप क्या कहेंगे? It's a circle with radius 1 centered at the origin. रेडियस 1 वाले को कहते हैं हम यूनिट सर्कल. इट्स ए यूनिट सर्कल. यूनिट का मतलब 1 होता है जिसका रेडियस 1. अच्छा जी, अब आप देखिए चूंकि उसने प्लस हाफ लिया, प्लस हाफ का मतलब ऊपर वाला हाफ है, प्लस माइनस दोनों नहीं लिए. माइनस वाला होता है नीचे वाला हाफ, ठीक है, सर्कल का. तो आई एम जस्ट टेकिंग द अपर हाफ. ये यहाँ से -3 से शुरू हुआ +3. क्योंकि रेडियस आपको पता है 3 आ रहा है, तो जहां जहां आप जाएंगे ओरिजिन से एवरी साइड पे इसका 3 होगा यूनिट. तो राइट साइड पे बनेगा 30 और लेफ्ट साइड पे बनेगा -30, ऊपर बनेगा 03 और नीचे आ जाएगा, क्या होएगा नीचे 0, -3 पता होना चाहिए. बहरहाल ये अपर जो सेमी सर्कल है इसको आप क्या कहेंगे? सेमी सर्कल. इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट द एक्स एक्सिस. लिमिट्स आर फ्रॉम -3 से +3. नजर आ रहा है ना? फिगर बनाने के ये फायदे होते हैं. यहाँ से शायद आपको डायरेक्ट समझ नहीं आता y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस x लिमिट क्या होगी, परेशान बैठे रहेंगे ना आप. तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपके दिमाग में खुद ही बात आ जाएगी. चूंकि इसका सिर्फ प्लस वाला अपर हाफ लिया है अंडर रूट, आपने प्लस वाला अपर हाफ यानी सेमी सर्कल बनाना है. नीचे वाला लोअर हाफ नहीं बनाना. ये डॉटेड लगा के मैंने इसलिए बनाया है that upper half is being revolved about the x-axis. ये जो एरिया है -3 से +3 लिमिट और सेमी सर्कल जो ऊपर है x-axis से, उसको घुमाया आपने तो नीचे भी आएगा उतना ही, और एक पूरा क्या बन जाएगा? बताओ क्या बनेगा? शेप क्या आएगी? Who can tell me? जब इसको जोर जोर से आप घुमाएंगे इस एरिया को, तो what shape you are going to get? Who will tell me? जल्दी बताओ. नहीं बता सकते भाई. इसको हम कहते हैं स्फीयर. एक सॉलिड सी एक बॉल बनेगी ना, बॉल बन जाएगी, उसको स्फीयर कहते हैं. आप लोग के माइक्स तो खुले हुए हैं ना? हाँ क्या ना? हेलो जी जी सर, खुले हुए. तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? ये एक स्फीयर बनेगा. सेमी सर्कल को जब हम घुमाएंगे अबाउट द एक्स एक्सिस, it will be generating a solid sphere. लिमिट मैंने आपको बता दी, -3 से +3 समझ में आ गया. अब आइए फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं. The general formula for the volume of revolution is V equal to
लिमिट फ्रॉम ए टू बी पाई आर एक्स होल स्क्वायर, इसको हम वाई भी कहते हैं, आर एक्स का मतलब है वाई, पाई वाई स्क्वायर, वाई की ये वैल्यू है हमारे पास, यही आर एक्स कहलाता है। इसका स्क्वायर लें, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल करेगा, सो अंडर रूट विल गो, खत्म हो जाएगा। बाकी dx पाई इज ए कांस्टेंट, सो यू टेक इट आउटसाइड। -3 से +3 लिमिट ली, और एक मैं लिमिट की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, कभी किताब खोल के पढ़ लेना, कि इफ वी कट द लिमिट इनटू हाफ देन वी मल्टीप्लाई द इंटीग्रेंड बाय 2। नहीं समझ में आया? पहली दफा तो सुनते ही नहीं ना आप लोग। क्या बोला, किसको याद आया? ये एक लिमिट की प्रॉपर्टी है, दैट आई एम टेलिंग यू, दैट इफ वी cut the limit into half then we multiply the integral with 2। ये देखो मैंने यही काम किया, -3 से +3 सिमेट्रिकल लिमिट थी ना, जितना ओरिजिन से लेफ्ट पे थी उतनी लिमिट राइट पे थी, तो मैं अब लिमिट ले रहा हूँ 0 से 3, मैंने आधा कर दिया ना, -3 से +3 की बजाय मैंने आधी कर दी लिमिट -0 से 3। तो लिमिट जैसे ही मैंने 0 से 3 की, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पाई भी बाहर निकाला। कोई प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? ये 2 पाई कैसे हो गया, ये -3 से +3 जो लिमिट है वो 0 से 3 कैसे बन गई, यही समझा रहा हूँ। एक आदमी सोता हुआ भी आंख मल के उठता हुआ, सर ये मुझे समझ नहीं आया, अभी मैं पूछ रहा हूँ, नहीं आया तो पूछो, तो अभी नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं पूछना। सर ये दोबारा बता दें एक दफा। देखा ना, मुझे ये पता था ये दोबारा का सवाल है। क्या बता दूं दोबारा, ये बताओ क्या चीज बताओ, मतलब क्या चीज समझ सर नहीं जो आप? आपने 0 0 क्या 0 0? जो आपने 0 0 में इसका हाफ किया ना, ये दोबारा बता दें। देखिए यहाँ लिमिट -3 थी, +3, इधर आए फिगर पे, -3 से +3 पूरी बराबर बराबर है ना। अगर अब मैं सेंटर पे ओरिजिन पे आ जाऊं, सेंटर है ना यहाँ पे, तो जितनी लिमिट इधर है उतनी ही राइट पे है या नहीं है, बताओ कितनी है? तो भाई ये जो लड़की पूछ रही थी सवाल, वो कहाँ चली गई? नहीं सुन रही अब? मेरी आवाज नहीं आ रही अब? जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो सांप सूंघ जाता है। जी सर दोबारा बताएं। बोलो ना, फिर मुझसे पूछिए दोबारा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो -3 से +3 थी, अब मैं जब 0 से 3 ले रहा हूँ, ये इसकी आधी हुई है या नहीं हुई? जी सर हो गई आधी। हो गई ना। तो जब लिमिट हमने आधी कर दी तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि बैलेंस रहे। अब आई बात समझ? सही है जी सर, सही है। लिमिट आधी कर दी है ना, इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई। लिमिट आधा करने का फायदा क्या है, एक लिमिट 0 हो जाए ना तो उसकी इवैल्यूएशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि x इक्वल 0 तो आसान हो जाता है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आइए अब इसको इंटीग्रेट करें। 9 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 9x। x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, x³/3। हम पावर में ऐड करते हैं, इसी से डिवाइड करते हैं। लिमिट क्या हो गई हमारी, फ्रॉम 0 to 3। 2 पाई एज इट इज आउटसाइड। अब 3 रखिए x की जगह, 3 × 9 27, 3 की पावर 3 इज 27/3। कैंसिल करोगे 9 आ जाएगा, 27 - 9 will be 18। 2 × 18 is 36 पाई। खत्म हो गया। अब बताओ, तो ये सेमी सर्कल को जब हम घुमाएंगे अबाउट द एक्स एक्सिस with this radius, so you'll be getting its volume as 26 pi। Now any step not clear? एक घंटा अपने आप से पूछने में लगेगा कि हाँ हमें क्लियर है या नहीं, और 1 घंटा जवाब देने में लगेगा। यस सर क्लियर है। कितनी देर लगी इस बात को बताने में? टाइम जाया करते हैं ना, आप लोगों को बहुत शौक है अपना वक्त जाया करने में। 1 सेकंड का सवाल तो 1 सेकंड का जवाब होना चाहिए, देर क्यों लगती है?
चलिए ना क्वेश्चन नंबर 23, y इक्वल टू अंडर रूट cos x, लिमिट फॉर द x इज 0 to pi by 2, x is 0 और y is 0. x 0 y 0 मीन्स ओरिजिन हो गया, ठीक है, और x की लिमिट है 0 से pi by 2, ये मैंने ले लिया 0 से pi by 2. y इक्वल टू अंडर रूट x, जरा आप इसको बनाइए, इसका ग्राफ या इसकी टेबल बना लें, टेबल में वैल्यूज ले लें. तो जब x को आप 0 रखोगे तो cos 0 क्या होता है 1, अंडर रूट 1 विल रिमेन 1. व्हेन x इज 0 y इज 1, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये पॉइंट आ गया 0 1. और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, व्हेन x इज pi by 2 cos 90 is 0, तो y will be 0. देखिए 90 पे 0 हो गया और 0 पे ये 1 हो गया. बस इस पॉइंट को घुमाएं, cos का फंक्शन जैसे होता है, ये कर्व आ गया. ये टिपिकल आपने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ये जो छोटा सा मैंने शेड किया हुआ है बीच में, ये घूमेगा और डिस्क बनेगी छोटी पतली सी, जिसकी विड्थ क्या होगी dx. dx will be the width of the disk, और बेस एरिया क्या होगा पाई वाई स्क्वायर. ठीक है, बस दोनों का जो बेस एरिया होगा पाई वाई स्क्वायर. तो ये पाई और वाई स्क्वायर, ये वाई जो है हमारा अंडर रूट एक्स है, इसका स्क्वायर ले लो, लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2. जब स्क्वायर लोगे तो अंडर रूट विल गो, खत्म हो गया, cos x बचा. cos x इंटीग्रल क्या होता है sin x, याद रखना, और डेरिवेटिव होता है माइनस sin x. इन दोनों के अंदर फर्क बार बार कहता हूँ रखना दिमाग में, प्लस का माइनस इधर उधर जहां मर्जी लगा दो तो नंबर भी फिर प्लस माइनस ही लगेंगे. इन चीजों का बहुत ख्याल रखा करें. द इंटीग्रल ऑफ cos is sin x, limit is from 0 to pi by 2, pi is already outside, sine of pi by 2 upper limit minus sine 0, sine 90 is 1, sine 0 is 0, pi into 1 will remain pi. So this is your answer. Questions are not difficult at all. huh? कोई है डिफिकल्टी, बोलो, कोई प्रॉब्लम? नो सर. ऐसा होता है प्रॉम्प्ट जवाब आना चाहिए, लगता है कि जिंदा लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं. और से डूइंग वन मोर प्रॉब्लम, इसके बाद फिर मैं y एक्सिस वाले क्वेश्चन लूंगा. अभी तो ये सारी रेवोल्यूशन है अबाउट द x एक्सिस. देन आई विल कंसीडर क्वेश्चंस वेयर द एरिया विल बी रिवॉल्व्ड अबाउट द y एक्सिस. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन था और ये इतनी मशहूर सी इक्वेशन नजर नहीं आ रही थी, तो मैंने इसकी टेबल ऑफ वैल्यूज से इसको स्केच किया है. और से देखिए, द रीजन बिटवीन द कर्व y इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x, द x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 1/4 टू x इक्वल टू 4. ये तो उसने आपको बता दिया x की लिमिट, तो इसको 1/4 ले लिया, 4 ले लिया और एक वैल्यू और रख ली. चेक कर लेते हैं, और भी ज्यादा भी रख सकते हैं आप. तो गिवन x इज 1/4, ये है 1/4, तो y की वैल्यू देखिए यहाँ पे रखे आप 1/4, तो अंडर रूट ऑफ 1/4 विल बिकम 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड y विल बिकम 1. यारी बात समझ में, दैट आई हैव सॉल्व्ड फॉर y. व्हेन x इज चलें इसने क्या लिया 1, x को 1 रख लो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, क्योंकि अंडर रूट 1 विल रिमेन 1, 1 into 2 will remain 2, and 1/2 will be the value of y, that is 0.5. और आखिरी वैल्यू रख दें 4, x को 4 रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4 will become 2, 2 into 2 4, 1/4 will be 0.25. So that's why I have made this table of values, and then you sketch this curve. So at 1/4 the value was 1, at 4 it was 0.25, इन बिटवीन से अगर 1 रखें तो 0.5. इसको आप ज्वाइन कर दें स्मूथली ऑल दीज पॉइंट्स, 2 पे 3 पे भी निकालने आप वैल्यूज, तो ये करवा गया आपने लाइक दिस. सो द एरिया इज टेकन फ्रॉम x इक्वल टू 1/4 अप टू x इक्वल टू 4. ये आपको दी है ना x लिमिट्स. So draw the vertical bars at x equal to 1/4 and at x equal to 4, and under this curve and above the x-axis. This area is revolved about the x-axis. The limits are from 1/4 to 4. जी,
अब आप देखें वैल्यूज आपको फॉर्मूला रखने हैं, इसमें बहुत आसान है। सेम फॉर्मूला a to b pi r x square into, यानी ये y है तो याद रखिएगा pi y square into b है। Put the value of y, pi, your y is 1 over 2 under root x whole square. Its square will become 1 by 4x, ठीक है ना, 1 by 4 मैंने बाहर निकाल दिया ये 1 by 4 बाहर आ गया, 1 over x dx. And you know very well I have given you a long list of the integration formula. 1 upon x का इंटीग्रल हमेशा log x होता है, याद होना चाहिए। नहीं आता है तो कब तक आप लिस्ट में उठा के देखते रहोगे, इसी तरह टाइम जाया होता है और फिर आप लेट हो जाते हो अपना सोल्यूशन सबमिट करने में। Okay, 1 over x integration is log x. Put the upper limit pi by 4 outside, log 4 and minus the lower limit log 1 by 4. अब देखिए जब आपने कानून पढ़ा हुआ है लॉग का, लॉग ए माइनस लॉग बी इसके बराबर होता है लॉग ए अपॉन बी। ये लॉग एम माइनस लॉग एन इज रिटन एज लॉग एम अपॉन एन। ओके, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 1 बाई 4 तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, log 16 हो जाएगा। तो पाई बाय 4 इज आउटसाइड एंड दिस विल बिकम log 16। इसको मजीद हल करना है, सुन लो अब देखो, और ऑथर मजीद उसको हल करना चाह रहा है, आप या तो छोड़ दें, आई विल नॉट माइंड इट, लेकिन वो क्या कर रहा है 16 को लिख रहा है 4 की पावर 2 लिखता है ना, लिख सकते हो ना 4 की पावर 2। अब ये पावर जो होती है ना, एक होता है log m की पावर n, n is brought as a coefficient, वो लिखा जाता है n log m। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जो है ना इधर आ जाएगा तो log 4 हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो इस 4 से कैंसिल होगा, ठीक है। तो पाई बाई 2 बचेगा, ये log 4। तो सिंप्लीफाइड आंसर इज पाई बाई 2 log 4। जिसको समझ नहीं आया पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये नहीं, आप मेरी बात को सुने ना थ्रू आउट, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर ये दोबारा समझा दें, समझ ही नहीं आया, कहाँ से नहीं आया वहां से बताओ। ये क्या मतलब है, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात, ये अच्छी बात नहीं है। सुने और जहाँ से नहीं आया वहां से पूछे, रिपीटेशन कहेंगे फिर से कर दें, तीसरा उठेगा उगेगा फिर से कर दें, तो सारा दिन ये फिर पूरी होता रहेगा। आप दिमाग लगाएं, कीप ऑन लिसनिंग टू मी एंड स्टेप विच इज नॉट क्लियर, मैंने तो आपसे कहा है ड्यूरिंग माई एक्सप्लेनेशन आप कहें कि सर ये बताएं दोबारा से, उस वक्त तक नहीं सुनते, सारा खत्म हो जाता है, फिर सोचते हैं अरे हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया, हमने सुना ही कुछ नहीं। सर दोबारा बता दें, ये दोबारा मेरे नजदीक में ना जहर है। अब कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, चलिए ना पूछे। नो सर क्लियर है। अब जनाब आप ही की बुक में ये दूसरी स्लॉट आ गई, दूसरी स्लॉट है क्वेश्चन 31 to 36। Find the volume of the solid generated by revolving each region about the y-axis। अब हमने रीजन जो है स्केच करना है, and then we'll take the limit along the y-axis and we are to revolve the area about the y-axis, ठीक है। अब जितना भी कर्व के ऊपर पॉइंट्स हैं, every point will be generating a circle which should be centered at the y-axis। और अगर हम इस पूरे वॉल्यूम को थोड़ा सा स्मॉल पीसेस में कट करें और एक पीस को लें तो वो डिस्क बन जाएगी, ठीक है। और उसको आप जो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पिछला हमारा केस था पाई वाई स्क्वायर, नाउ आवर रेडियस विल बी ऑफ द एक्स एक्सिस, जिसको हम आर वाई भी लिखेंगे या एक्स लिखना है। तो पाई एक्स स्क्वायर विल बी द बेस एरिया एंड डी वाई विल बी द विड्थ। अब हम क्योंकि वाई पे जा रहे हैं तो डी वाई, तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, दिस विल बी द फॉर्मूला। और एक्स स्क्वायर को मैं लिखूंगा आर वाई पावर।
Now my question number 31 is that the region enclosed by x equal to under root 5 and y square. Y square is outside. Under root 5 y square. X is 0, y is -1 and y is 1. ये जो x या y equal to some constant होता है, these are actually the straight lines. याद रखिएगा. x0 किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? y एक्सिस को कहते हैं. y0 किसको कहते हैं? x एक्सिस को कहते हैं. x equal to 1, it will be a straight line parallel to the y axis. x equal to 1 यानी ओरिजिन से x पे आप 1 लेंगे और लाइन होगी पैरेलल टू द y. y equal to 1 का मतलब होगा a straight line parallel to the x axis. अगर +1 है तो ऊपर होगा, -1 है तो नीचे हो जाएगी. ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए हर बार. ओके. x equal to 0, this is y axis. y equal to -1, ये नीचे लाइन जो जा रही है y equal to -1 parallel to the x axis. Y equal to 1, it's a parallel line parallel to the x axis and 1 unit above the x axis. So okay, using the formula phi r y square dy and limits c to d, because just to differentiate from the x axis नहीं हो रहा बल्कि अब हमारा एरिया रिवॉल्व हो रहा है y axis. तो put the formula limit from c to d phi r y square r y whole square into dy. R y is same as x. याद रखिएगा. I am telling you again and R y is same as x. Phi x square. The value of x is under root 5 y square and then you will take the whole square into limit. और लिमिट होगा y पे और लिमिट आपकी -y से प्लस -1 से +1. y एक्सिस पे लिमिट ली जाएगी. दिस इज कॉल्ड c to d. ओके. Under root 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा. That is a constant. You can take it outside the integral sign. Pi is a constant. Take it outside the integral sign. Y square का जब स्क्वायर लेंगे, you'll get y bar 4. And once you integrate y by 4, you'll be getting y5 divided by 5. And the limit are from -1 to +1. इसको भी आप कर सकते थे. Cut the limit into half and multiply the integrand with 2. ये भी हो सकता था. चलो मैंने यहाँ नहीं किया, डायरेक्टली किया. ये भी सीख लें. ये जरूरी नहीं कि हम कट करें हमेशा, ना भी करें. So first you put the upper limit, that will be 1, फिर minus times the lower limit -1 into -1 plus ये हो जाएगा 2. So 2 pi is your answer. Who did not get this question? पूछिए, शाबाश पूछिए. किसी को ये सवाल क्लियर है समझ, सर. क्या ये सर का मतलब है, समझ नहीं आया? क्लियर है सर. क्लियर है. क्लियर. शाबाश. तो 40 में से सिर्फ एक बच्चे को क्लियर हुआ, बाकी 39 सो रहे हैं. जी 38 की क्लास है. 37 आर स्टिल स्लीपिंग. चलो क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा हूँ. देखिए 10 मिनट के बाद आपका ये ब्रेक शुरू हो जाएगी. उस ब्रेक पे आप नमाज पढ़िएगा, खाना खाइएगा, आधा घंटे की ब्रेक एंजॉय कीजिएगा. जैसे पिछली दफा क्लासरूम में आप लोग गए थे कोल्ड ड्रिंक्स पीने, तो मैंने कहा था कि आधे घंटे बाद आइएगा, तो फिर गए तो फिर अपनी मर्जी से वापस आए. बहुत देर से. बहुत अच्छा लग रहा था बाहर कैंटीन पे कोल्ड ड्रिंक पीना. आप कोल्ड ड्रिंक ना घर में ला के रख लिया करें अपने पास पहले से. ओके 9 मिनट्स आर लेफ्ट. देखिए क्वेश्चन भी कर रहा हूँ. The region enclosed by x under root 2 sin 2y is revolved
in the limits 0 is less than equal to y is less than equal to pi by 2 और x is 0. x 0 का मतलब होता है y x, याद रखना. x 0 का क्या मतलब होता है y x, y 0 का क्या मतलब होता है x x. ये दो तो अच्छी तरह रट रहे. x equal to 1 क्या होगा, a line parallel to the y axis. y equal to 1 का मतलब क्या होगा, a line parallel to the x axis 1 unit above the origin. आइए जनाब, ये मैंने थोड़ी सी फिगर बनाने के लिए कहा था. 0 से पाई बाय 2 लिमिट है. चले हम ले लेते हैं, तीन वैल्यूज ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, आखिरी ले लेते हैं, बीच में पॉइंट ले लो पाई बाय 4. पाई बाय 2 जो होता है वो 90 डिग्री होता है, पाई बाय 4 45. 0 और 90 के दरमियान एक एंगल ले लिया 45. लेट्स सी कि कर्व कैसा बन रहा है. जब मैं x को 0 रखूँ, यानी सॉरी y की वैल्यू है ना, y को 0 रखूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो x भी 0 हो जाएगा. When y 0 x is 0. When y is pi by 4, अब देखिए मैं pi by 4 pi by 4 यहाँ रखोगे तो कट के क्या हो जाएगा pi by 2, और sin pi by 2 क्या हो जाएगा 1 into 2 2, अंडर रूट में 2 का आंसर आता है 1.41. ये कैलकुलेटर आपके हाथ में आना चाहिए, सही कैलकुलेशन. समझ में आ गई बात. अब आखिरी पॉइंट रखें pi by 2 अपनी लिमिट का. pi by 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल कट हो जाएगा, sin pi आएगा और sin pi 0 होता है, याद रखिएगा. ये सारा 0 हो जाएगा. आगाज भी 0 से हुआ, अंजाम भी 0 पे हुआ. ओके, व्हेन x is 0 y is 0 तो ये ओरिजिन हो गया. व्हेन x is pi by 4, चलिए यहाँ आया. सॉरी x जो है वो तो 1.41 आ रहा है ना, 1.41. ये तो y की वैल्यू आ रही है pi by 4, ये pi by 4 है, और x की वैल्यू है 1.41. और फिर y पे जाएंगे हम pi by 2 तक, तो x की वैल्यू फिर 0 हो गई, दोबारा यहाँ आ गया. तो ये खतरनाक सी शक्ल बन गई है आपके सामने. ठीक है, जैसे जैसे कोई आजकल मास्क भी आ रहा है ना कपड़े का, मुंह पे लगा के फिरते हैं. ये कौन लोग घूम रहे हैं बाहर. चलिए साहब, ये आप लगाइए फॉर्मूला. वॉल्यूम का फॉर्मूला वही है, C to D पाई आर वाई स्क्वायर डी वाई. आर वाई होता है x, याद रखना. ये x की जो वैल्यू दी यही आर वाई है. इसका पूरे को अंडर रूट 2 साइन 2 वाई, इसका स्क्वायर लोगे तो अंडर रूट विल बी कैंसल्ड, कैंसलिंग की पावर. अब आपके पास अगर 2 साइन 2 वाई, दिस 2 यू टेक इट आउटसाइड एंड पाई यू टेक इट आउटसाइड बिकॉज बोथ आर द कांस्टेंट्स. नाउ इनसाइड द इंटीग्रल will be left sin 2y dy and limits will be from 0 to pi by. What will be the integration of sin 2y? बताना चाहिए. sin 2y का इंटीग्रेशन माइनस cos 2y होगा, और एंगल के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते हैं, डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इन केस ऑफ द इंटीग्रेशन वी डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल. 2y एंगल है इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, यू आर टू डिवाइड इट बाय 2. तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2y will become minus cos 2y upon 2. It should be very much clear to you. Limits are from 0 to pi by 2. केवल y की वैल्यू दी हुई है, ये C to D. क्योंकि जिस 2 भी बाहर आएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस पाई. कुछ कैलकुलेशन दिमाग में भी करना सीखिए. अब आपके पास अंदर बचा cos 2y, इसके अपर लिमिट पुट फिर cos 2 और y की जगह लगाएंगे पाई बाय 2 माइनस अगेन cos 2, y की जगह आप रखेंगे द लोअर लिमिट दैट इज 0. अब आइए, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, याद रखेंगे, और cos 0 होता है 1, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूले में माइनस आता है, तो ये भी -1, ये भी -1. जी, ये हो गया -2. इस -2 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +2 पाई. जी, किसको समझ में नहीं आया? सर आ गया समझ में, क्लियर है. गुड. और मेरा ख्याल है मैं इसका आखिरी क्वेश्चन भी आपको करा दूं. और ये वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन विच वाज डैम सिंपल, मेरा ख्याल है आपको पेपर में अगर आ जाए
आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और कर लीजिएगा। उसके दो पार्ट दूंगा, एक को घुमाऊंगा एक्स एक्सिस के लिए, दूसरे को घुमाऊंगा वाई एक्सिस। हाँ, ग्राफ थोड़ा सा अलग होगा, सेम नहीं होगा जो मैंने यहाँ करा दिया। ठीक, सही। क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट वाई प्लस 1, x इज 0, y 0, y इज इक्वल टू 3। मतलब है y की तो ये लिमिट हो गई 0 से 3 दोनों की, ठीक है। ये c और ये d। अब हम एक टेबल बना लेते हैं, इसको ग्राफ बनाना, क्योंकि ये इतना मशहूर फंक्शन नहीं है, तो लेट्स ड्रॉ द फिगर। तो हमारी लिमिट क्या है 0 से 3 तक, तो 0 1 2 3 ले लो जी। x को 0 रखा, ये पहले y, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है, तो y को 0 रखें। जब y को 0 रखेंगे तो यह 1 बचेगा, अंडर रूट 1 रिमेन 1, तो 2 आंसर आ जाएगा आपका। When y is 0, x will become 2। नजर आ रहा है ना। अब रखिए 1, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, आएगा रूट 2, और रूट 2 का आंसर होता है 1.41 जी। अगर मैं 2 रखूं तो 3 बन जाएगा, अंडर रूट 3, तो 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, आपके पास कैलकुलेटर है, चेक कीजिएगा, 1.15 आंसर आ जाएगा। 3 रखिए डिनोमिनेटर में, y is 3 plus 1 will become 4, under root 4 will become 2, and 2 cancelling with 2, answer will become 1। इसको आप स्केचिंग कर लीजिए। When x is 2, ये देखो ये x की वैल्यू नीचे है, x को आप 2 जाए 1 2 यूनिट, तो y क्या है हमारा 0, ठीक है। When x is ये 1.41, यहाँ पे ले लो, तो y क्या आ रहा है 2, ठीक हो गया। When x is 2, तो y आएगा 1.15, ठीक है। और when x is 1, तो ये 1 आ जाएगा, तो y will be 3। Just join all these points, it will be a curve। ये कर्व है किसका, x equal to 2 upon root x y plus 1। This is the curve। This curve is revolved about the y axis। Limits about the y axis क्या है, यहाँ 0 से, और आखिरी वैल्यू क्या आ रही है हमारी y की 3, 0 से 3 आपकी लिमिट आ गई। This curve is revolved about the y-axis। यहाँ पे कर्व हमारा यूं बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। करिए, and now substitute the values। ये पाई x स्क्वायर dy, x की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, 2 over root y plus 1 होल स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4, इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 4 पाई will go outside because both are constant। Limit is from 0 to 3, and 1 upon 1 plus y whole square dy। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 over 1 plus y। आई टोल्ड यू, अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है y plus 1 और इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, log टाइम्स ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन, कराया था ना, क्लासरूम में भी कराया था, आपको लिस्ट एक फॉर्मूला भी दी हुई है जी। एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 3। 4 pi is constant outside as it is। Instead of y, you'll put 3 plus 1 log 4 minus log 0 रखोगे तो log 1 is always 0, लास्ट टाइम भी हमने किया था, तो आंसर आ जाएगा 4 pi log 4। यस और नॉट जी। और ये क्वेश्चन आप इसी तरह खुद कर लीजिएगा, मेरी तरफ से फरागत, डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, ताकि मैं ये पेपर में आपको दे सकूं। कर लोगे? ठीक है सर, कर लेंगे। कर लेंगे, बल्कि मैंने करके दे रखा है।